So Al4C3 reacts with NaOH, and what does it say? It states that the two products of the reaction are NaAlO2 and hydrocarbon and water molecules are also involved as reactants. अच्छा वो reactants है. So there are reactants involved. Where's the razor? अच्छा, so water molecules are involved as reactants, and your products are, what are your products? There is the two products are, one is NaLO2 and the other one is a hydrocarbon, and we have no idea what that hydrocarbon is. So you figure out what is this hydrocarbon? How do you figure this out? You've got a couple of options. Okay, I'm thinking of actually starting some of AS Organic today, at least just the introduction. So I've got Al4C3 reacting with NaOH plus H2O, and this is the equation, and I want to figure out what this is. So first thing is there are 4 Als. I'm going to try and balance it. So there are 4 Als. So there should be 4 NaAlO2. So that means there would be 4 Na. So I should have 4 NaOH. What else can I balance? I can balance the oxygens. There are 8 oxygens over here. Anything that's not part of this, I can balance. Anything that does not involve carbon and hydrogen, I can balance. I can balance oxygen, that's 8 on this side. So there's 4 over here, so there should be 8. So there should be 4 H2Os. So I've balanced aluminium, that's done. I've balanced Na, that's also balanced. I've balanced oxygen, that is also balanced. The only thing that I've not balanced is carbon and hydrogen. These are the ones that have not been balanced. Okay? So we have to figure out how to balance those. So that's easy. Okay? Left side, how many carbons I've got? I've got 3 carbons, right? So how many carbons should I have over here? I should have 3 carbons. So that means X would have a value of 3, right? And on the left side, how many hydrogens I've got? I've got 4 hydrogens over here. And I've got 4 into 2, 8 hydrogens over here. So that's a total of 12 hydrogens. So यहाँ पे कितने hydrogens होने चाहिए? There should be 12 hydrogens. So y should be 12, right? And then this equation would be balanced. Is this clear? But यहाँ तक, is this clear? This thing. Yes, sir. अच्छा, अब मसला क्या है? So that means there should be 3 carbons and there should be 12 hydrogens over here. You don't, but the problem is that there is no, this option is not present. So what is the formula of the hydrocarbon? Which one could actually be the right one? There should be 3 carbons and 12 hydrogens because there are 3 carbons over here and there are 12 hydrogens over here. So what could be the correct option? Kaun batayega? Like they didn't give us C3H12. It's A. How is it A? Sir, because 12, 3 4 is 12, so hydrogens would be 4 and carbon 1. That's basically you want 3 carbons and 12 hydrogens over here, right? So there could be another way to have 3 carbons and 12 hydrogens. Like if you have CH4 over here, like if you have 3 molecules of CH4, so what will happen is you'll have 3 carbons and you'll have 12 hydrogens. So basically you wanted 3 carbons and 12 hydrogens, and CH4 can make that possible. Is this clear? Okay, Sidra, Rizwan, is this clear? Alicia? Yes, sir. Then let's do some ratio questions as well. So this question is saying how many moles of nitrogen gas are produced from 1 mole of sodium azide, which is NaN3. So this is 1 mole.
So how many moles of nitrogen gas would be produced? According to the ratio over here, according to the ratio over here, if this is 1 mole, so this should be 2:3, so that would be 1.5 moles, right? So that's going to be 1.5 moles according to the ratio. So that means that would be 1.5 moles, and this would be 1 mole as well. So the thing is, you're getting 1.5 moles of N2 in the first reaction. But if you have 1.5 moles of N2 and 1 mole of sodium is produced, that 1 mole of sodium in the next reaction over here would also produce N2. 10 produces 1, so 1 mole will produce how much? 0.1 moles. So 0.1 moles yahan se bhi aa rahi hai. So in total, it's going to be 1.6. So the first reaction, if you use 1 mole of sodium azide, it will produce 1 mole of this and 1.5 moles of this. And if it produces 1 mole of sodium, in the next reaction, that 1 mole of sodium will produce 0.1. 10 produces 1. So 1 mole sodium from the previous reaction, if it's used over here, it's going to produce 0.1 moles. Okay, clear? Is this question clear? Yes, sir. So next is 2.92 grams of a group 2 metal X reacts with an excess of chlorine to form 5.28 grams of a. So remember, it's a group 2 metal X. It reacts with chlorine. Also, the formula we did, it forms XCl2. So the information that's given over here is that the chloride that is formed is 5.287 grams. And the mass of the group 2 metal is given, it's 2.920 grams. Kaun batayega, how would you figure out what X is? Like, what would you do? Can you find the moles of both? How do you find moles? Iske moles kya honge? Mass divided by the MR or AR of the metal, which in this case is not known. So I'm going to call it X. Okay. What are the moles of the products that are formed? It's mass divided by the AR, and I don't know what X is, so I'm going to take it as X. 2 Cls is 71, right? So clearly, I've found both moles in terms of X. Is this clear? Sir. Yes, sir. हाँ जी. सर तो इसके अंदर मोल्स को फाइंड करने के लिए आपके पास तो एमआर तो नहीं है. नहीं है ना, तो अब मसला हमने आइडेंटिफाई क्या करना है, मेटल ही आइडेंटिफाई करना है ना. अगर हमें एआर पता लग गई ना, तो हमें मोल्स पता लग जाएंगे. मतलब सॉरी, हमें एआर पता लग गई तो हमें मेटल का पता लग जाएगा ना. तो मेटल ही तो आइडेंटिफाई करना है, बेसिकली एआर से पता लगेगा. अच्छा ये बताओ कि अब रेशो कहाँ पे आएगा इसके? दिस मोल्स एंड दीस मोल्स आर गोइंग टू बी एग्जैक्टली द सेम. दोनों के मोल्स एग्जैक्टली सेम है ना. इट्स 1:1, राइट? सो दोनों के मोल्स एग्जैक्टली सेम है. यानी इसका मतलब है N1 is equal to N2, क्योंकि इक्वेशन ये कह रही है कि अगर ये 10x होता है तो वहां पे 10xCl2 बनते हैं. सेम रेशो होता है ना. So that means जो भी moles इसके होंगे वही moles इसके होंगे. So N1 is equal to N2. So that means 2.920 divided by x is equal to 5.287 divided by x plus 71. ये clear है? तो सर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसे. हाँ, अब इसको x के लिए सॉल्व कर लो. It's going to be 2.920x plus 71 into 2.920.
is equal to 5.287x. और फिर इसमें से subtract 2.92 from it. Find what the value of x is. क्या आ रही है? So what is the value of x? सर हाँ जी. सर इसका आंसर आ 2.367. नहीं. 71. नहीं सर जस्ट एक्स की बात कर रहा हूँ. नहीं, मैं भी x की बात कर रहा हूँ. x का ये आंसर नहीं आ सकता. कितना आ रहा है? एक सेकेंड. 2.367. नहीं 71 into 2.92 को डिवाइड करना है. और 71 into 2.92 should be divided. नहीं सर सिर्फ 5.287 माइनस 2.920 का मैंने आपस में माइनस अच्छा. किया. बाकी यस ठीक है, वो बाकी करो ना. अच्छा, क्या वैल्यू आई है? इट्स कमिंग आउट टू बी 87.59. ठीक है, तो x the AR comes out to be 87 point जो भी 59. ठीक है, तो आपने what you have to do is just look at the periodic table and find out which one is 87. I think मेरे ख्याल से strontium है. barium I think is 137. Strontium is the answer. I'm not sure, like, in probably you have to look at the periodic table. ये clear है this question? सर ये मोल्स का हम कौन सा वाला वो कर रहे हैं? ये moles and ratios है. ठीक है. मतलब इसमें बेसिकली ये कि sometimes what will happen is कि इस तरह के काफी सारे इस तरह के काफी बड़े टिपिकल किस्म के क्वेश्चंस आते हैं. Let me see if there's some वो, हाँ ये जिससे ये वाला भी इसी तरह रेशो की तरह ना. वो कह रहा है कि 5 ग्राम सैंपल ऑफ अ ग्रुप 2 कार्बोनेट जिसमें AR निकालनी होती है. ठीक है, तो there's a 5 ग्राम सैंपल ऑफ अ ग्रुप 2 नाइट्रेट. अब ग्रुप 2 नाइट्रेट है. अब आपको पता है कि X ले लेते हो ग्रुप 2 नाइट्रेट. ठीक है, तो NO3-1 होता है, तो फॉर्मूला जो होगा वो XNO3 ट्वाइस होगा ना, क्योंकि इसका +2 चार्ज होगा ना. तो डिकम्पोज होकर इट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड व्हिच इज गोइंग टू बी XO. इसका फॉर्मूला XO ही होगा क्योंकि X इज +2 ग्रुप 2 एंड O इज -2, और वो फिर फॉर्म करेगा 2 NO2 एंड हाफ O2. ठीक है, क्लियर है? नाइट्रेट्स डिकम्पोज होते हैं. दिस इज द बैलेंस इक्वेशन. ये X क्यों लिखा आपने? क्योंकि पता ही नहीं है वो कौन सा मेटल है. क्लियर है? उसको मैंने X कर दिया ना मेटल को. जी सर, फिर वो जो आपने NO3 सर 2 लिखा. हाँ वो, क्योंकि ये तो पता है ना वो ग्रुप 2 का है, तो इसका मतलब है X के ऊपर क्या चार्ज है. X के ऊपर क्या चार्ज है? +2 है ना. NO3 के ऊपर क्या चार्ज है? -1 है. तो फॉर्मूला क्या होगा? ये क्लियर है? जी सर. और मेटल ऑक्साइड का भी यही होगा. इट्स गोइंग टू बी X +2 and O would be -2, राइट? तो सो द थिंग इज कि आप ना फॉर्मूला तो फिगर आउट कर लोगे X की टर्म्स में. सही फॉर्मूला है, मतलब बस वो नहीं पता X है क्या. ठीक है, इक्वेशन भी बन जाएगी लेकिन X के फॉर्म में. ठीक है, तो आपने इक्वेशन तो बना ली है. अब अगला पार्ट है, तो मोल्स तो निकाल नहीं सकते क्योंकि AR तो पता ही नहीं है. तो उससे कहा कि 5 ग्राम सैंपल है, 5 ग्राम इसका है, तो इसको आप वो कर सकते हो डिवाइड बाय इसके मोल्स निकाल सकते हो. डिवाइड बाय MR करो तो व्हाट इज द MR? इट्स गोइंग टू बी X प्लस नाइट्रोजन 14 प्लस 16 ऑक्सीजन है, तो इनटू 3 48 प्लस 14 62, और 62 होल ट्वाइस 124 बनता है. ठीक है, तो इसके मोल्स आ गए, लेकिन मोल्स आए हैं X के फॉर्म में. और उसने कहा कि it loses 3.29 grams in mass. तो इसका मतलब है 3.29 grams उसने क्या लूज किया? what is lost?
it loses 3.29 grams. Gases प्रोड्यूस हुई है ना, कितनी गैस प्रोड्यूस हुई है? 3.29 grams. Is this clear? यस सर सर जब ये तो मेटल नाइट्रेट डिकम्पोज होता है तो हमारी ये मेटल ऑक्साइड NO2 और मतलब O2 बनता है। हाँ ठीक है। ठीक है सर। सर हाँ जी, तो जो 3.29 ग्राम्स है ये कलेक्टिवली इन दोनों का होगा? हाँ अब मसला ये तो दोनों का है, तो इसमें मोल्स का फॉर्मूला तो नहीं अप्लाई कर सकता ना। मोल्स का फॉर्मूला तो अगर मुझे एक का पता होता फिर मैं करता ना। अच्छा तो यानी आई कांट फिगर आउट कि ऑक्सीजन की मास क्या इसकी कितनी है, लेकिन मैं इसकी मास निकाल सकता हूँ क्योंकि 5 ग्राम्स टोटल था ना। 3.29 ग्राम्स इधर चले गए तो बाकी कितना बचा? 5 ग्राम्स में से 3.29 निकालो तो इसकी मास कितनी आती है? 1.71 ग्राम्स। सही है, क्योंकि 5 में से 3.29 सब्ट्रैक्ट करो तो पीछे 1.71 रह जाता है। तो इसके मोल्स आप निकाल लो, डिवाइड बाय mr, तो x प्लस ऑक्सीजन 16 होता है। क्लियर है? तो इन दोनों के मोल्स निकाल लिए। इज दिस क्लियर? यस सर। और फिर क्या करना है कि इसके मोल्स इक्वेशन में और इसके मोल्स इक्वेशन में दे गोइंग टू बी द सेम, क्योंकि 1:1 है इक्वेशन में। तो इन दोनों के मोल्स एग्जैक्टली, तो यानी इसका मतलब n1 और n2 आर एग्जैक्टली द सेम। तो इसका मतलब है 5 डिवाइड बाय जो भी था ना x प्लस 124 इज इक्वल टू 1.71 डिवाइड बाय x प्लस 16, और इसको सॉल्व कर लो तो 5x प्लस 16 इंटू 5 क्या होता है? दैट्स 80। और दूसरी साइड पे 1.71x एंड प्लस 124 इंटू, इधर सॉल्व करो क्या बनता है? इट्स 5x में से 1.791x, तो इस साइड पे रह जाएगा 3.29x, और दूसरी साइड पे 124 माइनस और डिवाइड बाय 3.29। तो व्हाट आर वी गेटिंग फॉर दिस? सर 40.1 आ रहा है। तो वो फिर दैट्स गोइंग टू बी कैल्शियम। ठीक है, तो AR 40.1 आ रही है। अच्छा, सो रिमेंबर के समटाइम्स यू कैन, अगर AR नहीं पता ना, यू कैन जस्ट फाइंड इट इन टर्म्स ऑफ x और रेशियो लगा। कभी कभार वो भी हो सकता है कि व्हाट कैन हैपन इज कि मतलब आपको ना वो रेशियो भी पता होना चाहिए। अगर मुझे तो क्वेश्चन थोड़ा सा और ट्रिकी भी हो सकता था। व्हाट इफ ये 1 होता और यहाँ पे 2, मतलब इक्वेशन में रेशियो इसका 2 आ रहा होता, फिर क्या होता? फिर इसका मतलब होता है कि n1 जो है ना, n2 के जो मोल्स होंगे ना, दैट वुड बी 2 टाइम्स n1। मतलब क्लियर है? अकॉर्डिंग टू द रेशियो कि इसके जो मोल्स होंगे दैट वुड बी डबल दिस। तो आपकी फिर रिलेशनशिप ये बनती है n1 इज इक्वल टू n2 ना बनता है, बल्कि बनता है 2n1 इज इक्वल टू n2। इज दिस क्लियर? और अगर सर फ्रैक्शन फॉर्म में हो फिर भी वैसे ही करेंगे। फिर वो रेशियो भी बीच में डालना पड़ता ना। तो सर अगर ऐसे हो जाए कि मतलब ये XNO3 का 2/3 रेशो और दूसरे का 1/3, तो वो शिफ्ट हो वो जाएंगे ना रेशो। नहीं नहीं, वो कर लेते हैं ना, जैसा रेशियो यूज करते हैं कि क्या रेशियो है कि लेट्स से ये 3 है और ये रेशियो क्या है? हाफ। सर जी 3/2 और ये। अच्छा चलो 3 और हाफ है, ठीक है रेशियो। तो ये था कि ठीक आप है सर। मोल्स निकालते किस तरह थे कि अगर इसके मोल्स आपको पता है n1 है तो n1 डिवाइड बाय 3 इनटू हाफ, वो इसके मोल्स आ जाएंगे ना। क्लियर है? तो अगर मैंने इसके मोल्स निकालने, इट्स गोइंग टू बी n1 डिवाइड बाय 3 इनटू हाफ, राइट? तो आपके पास दूसरे के मोल्स आ जाएंगे जो कि n2 है। तो आपके पास n1 और n2 की रिलेशनशिप आ गई है कि मतलब इसके मोल से स्टार्ट करो, और अगर रेशो 1:1 नहीं है तो फिर वो डिवाइड बाय इट्स मोल्स इनटू द अदर मोल्स। क्लियर है?
अच्छा सर वो डिवाइड कर देंगे इसको 3 को और फिर इनटू 1। हाँ वैसे भी तो वही करते थे ना कि मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ इमेजिन करो कि ये कोई नंबर है ना, ये n1 जो है सम मोल्स कोई नंबर है, तो हाउ डू यू फाइंड मोल्स कि अगर आपको एक के मोल्स पता है तो आप उसके रेशियो से डिवाइड करते हो, अगले के रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हो, फिर तो अगले के मोल्स आ जाते हैं। तो अगर आपको n1 पता है डिवाइडेड बाय इट्स रेशियो इनटू द अदर्स रेशियो, यहाँ पे तो दोनों ही 1 1 है, डिवाइड बाय 1 इनटू 1 तो n2 आ जाएगा। ठीक है ठीक, सर, जो मतलब छोटा होगा उसकी रेशियो से हम डिवाइड कर देंगे। जिस मर्जी से, वो मैटर नहीं कर रहा। ठीक है सर। नहीं मैं इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, वो थोड़ा सा वैल्यूज का मसला आएगा, एक सेकेंड। टू ये भी उसी तरह इधर करते हैं, एक हम करते हैं, एक सेकेंड रुक जाओ। अच्छा एक और क्वेश्चन है वो भी इसी तरह। अच्छा वो कह रहे हैं कि 1.1, हाँ यहाँ पे ना वो रेशियो डिफरेंट होगा, ठीक है। अच्छा लेकिन यहाँ पे द इशू इज कि यू कांट यूज एक्स। अच्छा रीजन यू कैन एक्स, अच्छा एक और सॉरी इसमें ना एक चीज मैं ऐड कर दूं, why can I use x over here? क्योंकि इशू है कि every time my equation is going to be exactly the same, the ratios are going to be exactly the same, क्योंकि हर दफा मेटल कौन सा है, it's a group 2 metal, right? अगर उसने ऑप्शंस में ना कोई और मेटल दिया होता अपार्ट फ्रॉम ग्रुप 2, तो ये इक्वेशन की जो डिकम्पोजिशन की इक्वेशन होती है दैट वुड बी डिफरेंट, क्योंकि अगर वो +1 होता है या +3 होता है, एवरीथिंग वुड हैव बीन डिफरेंट, राइट? ये क्लियर है कि तो द रीजन I can apply this to all the options is कि all of them are group 2 metals, तो इसलिए the equation is always going to be the same. अभी जो अगला the next question that we're going to try and do, इसके अंदर the issue is ये वाला, the issue is कि you've got calcium and you've got magnesium but the other ones are potassium, this is group 1, तो वो कह रहे हैं कि there's a metallic element reacting with oxygen to produce an oxide. अब इधर आप एक जनरल इक्वेशन नहीं बना सकते क्योंकि but I can't use a metallic element x, क्योंकि हर दफा वो x ही डिफरेंट है, कि यहाँ पे x के ऊपर +2 आ जाए, यहाँ पे भी x पे +2 है, यहाँ पे पोटेशियम इज +1 तो x लूंगा तो +1 होगा, इधर +1, तो एवरी टाइम द इक्वेशन इज गोइंग टू बी मेड डिफरेंटली, राइट? इज दैट क्लियर? तो यस। तो एक काम तो कर सकते हैं कि तो हर दफा इक्वेशन ही डिफरेंट आएगी, ठीक है, तो यहाँ पे वो काम नहीं कर सकते, तो दूसरा काम होता है कि व्हाट यू कैन डू इज यू कैन फिट योर डेटा टू द इक्वेशन। अब इधर मसला है कि द बेस्ट ऑप्शन इज ट्रायल एंड एरर। उसे कैल्शियम जो है ना वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो आपको पता है वो क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये हाफ होगा, तो आप मोल्स निकालो कितना ऑक्सीजन बना है, 300 cm3, तो जल्दी से बताओ कि how many moles would that be? 300 divided by 24,000, क्योंकि उसे रूम टेम्परेचर कहा हुआ है, that's 1/8, so that's 1/8 is what, 0.125 moles। ये कैलकुलेटर पे चेक कर लो क्या आ रहा है। Well, is it 0.125 moles? Sir, it's 0.0125. एक और जीरो है, 0.012, नहीं एक 0.0125, हाँ ठीक है, there's going to be 0.0125, ठीक है। अच्छा 0.0125 moles, right? So this is known as data fitting. Okay, you find the moles of this, and he's saying 1.15 grams of the metallic element. So in this case, it's calcium. If you look at the first option, it's calcium. So calcium ke moles kya hai? Calcium ke moles would be if it's calcium, so it's going to be, what is 1.15 divided by 40? Like how much do you get? Mass divided by the AR. कितना आ रहा है? 0.02875. Yes, sir. So you're getting 0.02875
मोल्स, अब दोनों के मोल्स अलग अलग आ गए, ठीक है। रिमेंबर दिस इज यू आर ट्राइंग टू फिट योर डेटा टू द इक्वेशन, कि you're saying कि if calcium was the option, the equation would have been this. So if calcium is the option, the moles of calcium would be this, क्योंकि the mass is given, and the moles of oxygen would be this. तो अब बताओ, is the data that you're getting, is it suitable or is it fitting to this equation? Equation क्या कह रहा था, इन दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, 1:1/2 होना चाहिए ना, यानी whatever the moles of calcium, the moles of oxygen would be half of that. Is that clear? So सर ठीक है सर, सिर्फ मोल्स तो हमने रेशियो से ही फाइंड किए ना, मतलब किसी के भी मतलब बस होना चाहिए कि हाफ होना चाहिए। नहीं, मैंने दोनों के मोल्स अलग अलग निकाले ना, उसने कहा 300 सीएम क्यूब ऑक्सीजन था तो मैंने उसके मोल्स निकाल लिए, राइट। ठीक है सर। और 1.15 ग्राम्स कैल्शियम था, मैंने उसके मोल्स अलग से निकाल लिए, ठीक है। लेकिन जब मैंने निकाले तो वो मोल्स मैच नहीं कर रहे, क्योंकि इक्वेशन कह रही है कि इनका रेशियो क्या होना चाहिए, 1:1/2 होना चाहिए ना। तो ये 1:1/2 तो नहीं बन रहा। तो 1:1/2 मीन्स कि इसके जो भी मोल्स होते हैं, ऑक्सीजन मोल्स वुड हैव बीन हाफ ऑफ दैट, राइट। तो इसके जो भी मोल्स हैं, ऑक्सीजन मोल्स आर नॉट हाफ ऑफ दैट। इसका मतलब है the data does not fit or is not suitable for this equation, मतलब this is not the right equation. Clear है यस सर। कि इनका जो रेशियो है वो बन ही नहीं रहा जो इक्वेशन कह रही है, ठीक है। तो सारों को क्लियर है, बाकियों को क्लियर है, सारों को सिद्धा इज दिस क्लियर? अलीशा, रिजवान? Yes, sir. सर हाँ, तो रेशियो वाइज इनके मोल्स इक्वल होने चाहिए। नहीं, इक्वेशन क्या कह रही है, क्या होने चाहिए, 1:1/2 होना चाहिए ना। सर या ग्रुप तो 1 की लाइक इक्वेशन तो फिर बदल जाएगी। हाँ सर ग्रुप 1 की इक्वेशन तो फिर बदल जाएगी ना, क्योंकि फिर इसमें तो हाँ, वो ग्रुप 1 की हाँ, तो इधर इसलिए मैं वो, वरना तो मैं वो एक्स वाला काम भी कर सकता था, लेकिन एक्स वाला काम जो था ना, जो पिछला हम कर रहे थे, एक सेकेंड इसको उठाए, एक्स वाला काम पिछले वाले में इसलिए चल रहा था क्योंकि पिछले वाले में ना वो हर दफा इक्वेशन सारों की वही थी। ये जो इक्वेशन थी ना ग्रुप 2 की, तो ग्रुप 2 नाइट्रेट की सारों की यही इक्वेशन है, तो इसलिए उसको मैं एक ही गो में सॉल्व कर सकता था। इधर मसला मुझे अब बारी बारी सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हर दफा जो इक्वेशन बनेगी ना वो डिफरेंट ही बनेगी, ठीक है। तो अगला कर लेते हैं कि मैग्नीशियम, अब ट्राई कर लेते हैं कि मैग्नीशियम के केस में क्या होगा। अब मैग्नीशियम के केस में, अच्छा, मैग्नीशियम के केस में इक्वेशन वुड बी द सेम, द रेशियो वुड बी एग्जैक्टली द सेम, except कि obviously you'll have magnesium plus half O2 and it will form MgO. अब मोल्स निकालो, ऑक्सीजन के मोल्स तो वही होंगे, it's going to be 300 cm3, तो 0.0125 मोल्स। mg के मोल्स का करो अब कुछ, mg के कितने मोल्स होंगे, 1.15 डिवाइड बाय कितना बन रहा है, 24 mr है उसकी ar, so what do you get for this? $0.0479। so 48 कर लेते हैं, ठीक है, वैसे राउंड ऑफ कर लेते हैं। अब दोबारा से वो जो डेटा आ रहा है ना, जो अलग अलग मोल्स निकाले वो फिट ही नहीं हो रहा है इक्वेशन के साथ, मैच नहीं कर रहे। इक्वेशन कह रही थी कि इनका मोल्स का रेशियो 1:1/2 होना चाहिए, दिस इज नॉट 1:1/2, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। मतलब मोल्स का रेशियो 1:1/2 नहीं आ रहा, तो दैट मीन्स डेटा जो गिवन है वो किसी और इक्वेशन का गिवन है, इसका नहीं गिवन। अच्छा, फिर इसी तरह मैच करते रहो, अब ये टाइम कंज्यूम है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। अच्छा, लेट्स से अब इक्वेशन भी डिफरेंट हो जाएगी कि ग्रुप 1 की ना, the equation would be completely different. It's going to be potassium को करो, potassium plus O2 is going to form K2O, इसको 2 कर लो, इसको 4 कर लेते हैं, ठीक है। तो 4:1 बन रहा है। अब पोटेशियम के मोल्स बता दो, 1.15 डिवाइड बाय 39 कितना बनता है। ऑक्सीजन के तो मोल्स वही होंगे, 300 cm3, 0.0125, so they are 0.029 0.029। ये बताओ कि इज दिस 4:1 और नॉट, क्योंकि इक्वेशन इज सेइंग कि ये 4:1 होना चाहिए, 4 इसके तो इसका 1,
So is this 4:1? 0.029 को डिवाइड बाय 4 करो, ये आता है कि नहीं आता? जी मतलब मतलब अगर एस्टिमेट करें तो आ जाए, नहीं आना मतलब सर चाहिए। वो जी सर नहीं, वो 1117 आ रहा है तो शायद नहीं होगा फिर। नहीं उसके करीब ही नहीं आ रहा। 0.029 को डिवाइड बाय 4 करो, क्या नहीं आता है? सर, ये आंसर नहीं है 0.029 को वैसे डिवाइड बाय 4 करो, क्या आता है? सर। मतलब सर 0.00725। हाँ, वो तो 7 कुछ जी आएगा ना। 29 को 4 से डिवाइड करो तो 7 कुछ आता है, तो यहाँ पे तो 125 लिखा हुआ है, तो वो तो उसके करीब भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब खैर ऑप्शन चौथा ही रह गया फिर, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। सो फोर्थ इज द राइट ऑप्शन, वो हम कर लेते हैं। उसकी इक्वेशन भी इसी तरह बैलेंस होगी। इट्स गोना बी 4 Na एंड 2 Na2O। तो मोल्स इसके तो वही मोल्स हैं 0.0125। Na के जरा मोल्स निकाला 1.15 डिवाइड बाय 20। Na क्या होता है? Na कितना होता है? Why am I forgetting? 23। ठीक है, तो कितने बने? 0.05 0.05। 05 अच्छा, क्या ये अब 4:1 बने इनका या नहीं बना? इक्वेशन कह रही है कि 4:1। इसको डिवाइड बाय 4 करो तो ये आता है कि नहीं आता? मेरे ख्याल से एग्जैक्टली यही आता है। जी सर या सर यही आंसर है। ठीक है, तो रिमेम्बर दिस के दिस इसको कहते हैं कि यू कैन आइदर, ये वाले क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी हैं कि यू कैन आइदर sometimes the data would be given and you can fit that data onto an equation. अगर वो डेटा मैच कर जाता है इक्वेशन के साथ तो उसका मतलब है वो इक्वेशन ठीक है, यानी ये वाली इक्वेशन जो है ये बिल्कुल सही है, जो सोडियम से बनी है। अच्छा, अगला वाला है कि ये भी आसान है। वो कह रहे हैं कि 1 gram of either X or YZ is reacted with an excess of acid, the total volume of gas formed is the same. अगर दोनों ने एंड में गैस सेम फॉर्म की है तो इसका मतलब गैस के मोल्स भी सेम होंगे। इसके N1 कर लेते हैं, इसके N2 कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर इसके मोल्स N1 होंगे और N1 और इसके भी N1 ही होंगे, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों ने एक ही अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म की है। द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस फॉर्म्ड इज द सेम। चाहे ये वाला रिएक्शन करो, ये वाला रिएक्शन करो, इसका मतलब है गैस के मोल्स दोनों के एग्जैक्टली सेम है। और अगर दोनों के एग्जैक्टली सेम है तो इसका मतलब है कि ये 1:1 है, तो इसके मोल्स भी वही होंगे N1, और उसके मोल्स भी एग्जैक्टली N1 ही होंगे। तो मोल्स निकलेंगे किस तरह N1? इसके निकलेंगे मास डिवाइड बाय mr। उससे क्या कहा था? 1 ग्राम है। 1 ग्राम डिवाइड बाय द AR ऑफ X, और उसके मोल्स कितने बन रहे हैं? N1। इसके मोल्स कितने बन रहे हैं? ये भी वो 1 ग्राम यूज कर रहा है, डिवाइड बाय द AR ऑफ, बल्कि AR नहीं होगा, MR होगा क्योंकि ये कंपाउंड है, डिवाइड बाय द MR ऑफ YZ। और इसके मोल्स कितने बन रहे हैं? इसके मोल्स भी N1 बन रहे हैं। ठीक है, अच्छा, सो द क्वेश्चन वाज कि एंड में गैस एक ही जितनी बन रही है दोनों रिएक्शंस में। 1 ग्राम इसके यूज किए थे, 1 ग्राम इसके यूज किए थे, एंड में गैस इज द सेम फॉर बोथ ऑफ देम। तो अगर सेम गैस है तो दोनों के गैस के मोल्स एग्जैक्टली सेम है। अगर इसके मोल्स N1 है तो इसके भी N1 है, और अगर इसके मोल्स N1 है तो इसके भी N1 है, क्योंकि 1:1 है। इसके मोल्स N1 है तो इसके भी N1 है। मोल्स निकालते किससे? मास डिवाइड बाय mr, मास डिवाइड बाय mr। तो दोनों को इक्वल कर दो, क्योंकि दोनों ही N1 आ रहे हैं, तो इसका मतलब है 1 ग्राम ऑफ डिवाइड बाय द MR ऑफ YZ, ये N1 हो गया। और उस उधर N1 कितना आया था? 1 ग्राम डिवाइड बाय द AR ऑफ X। इसको अगर सॉल्व करो तो एंड में आंसर आता है कि ये जो MR उसकी है ना YZ की, और जो AR X की है, दे आर इक्वल। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ये क्लियर है?
सर और इसको हाँ जी, सर ये क्वेश्चंस इसी तरीके से आएंगे या डिफरेंट भी आ सकते हैं? नहीं ये क्वेश्चन, ये वाले जो क्वेश्चन हम करें थोड़े से मुश्किल है, ज्यादातर क्वेश्चंस तो मेजॉरिटी तो सिंपल ही होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये वाले क्वेश्चंस जो ये रेशियोज वाले अलग से हमने वो मैंने ग्रुप किए हुए ना, ये सारे हैं थोड़े ट्रिकी, ठीक है। इस क्वेश्चन को वैसे बड़े सिंपल तरीके से भी समझ सकते थे कि भाई गैस के मोल्स बराबर बन रहे हैं, तो मतलब इसका मतलब इसके मोल्स और इसके मोल्स एग्जैक्टली सेम है, और इसका रेशियो सेम है तो इसके भी मोल्स वही है, इसका और इसका रेशियो सेम है तो इसके भी मोल्स वही है। अगर मास भी सेम है, मोल्स भी सेम है, तो दोनों की एमआर भी सेम ही होगी, तो इसलिए 1 ठीक है। क्लियर है ये सारों को? मैथ्स जो गिवन है मतलब उस वाले का देखा है, मतलब एआर भी सेम होगा फिर से। हाँ, क्योंकि अगर दोनों की जो मैथ्स यूज कर रहे हैं, एक्स की मैथ्स यूज कर रहे हैं और वाई की मैथ्स यूज कर रहे हैं, दोनों केसेस में कितनी यूज कर रहे हैं, 1 ग्राम, और दोनों के मोल्स भी सेम आ रहे हैं। अगर मैथ्स भी सेम है, मोल्स भी सेम है, तो वो जो एमआर वगैरह आप यूज करें वो भी सेम ही है ना, तो इनमें वही आ जी रहा है। सर। अच्छा, दे मेटल्स, चलो वो बाकी तो छोड़ दो। अच्छा, इसी में मैंने और थोड़ा सा ना एक क्वेश्चन और कर सर लेते हैं। हाँ जी, सर ये बाकी जो ऑप्शंस है इसको डिस्कस कर सकते हैं? वो कह रहे हैं एक्स एंड वाई आर मेटल्स, तो वो तो मेटल्स, मेटल्स कौन से आयंस बनाते हैं, पॉजिटिव आयंस, राइट? तो वो दोनों पॉजिटिव आयंस बना रहे हैं, तो ठीक है वो मेटल्स है, ठीक है। एंड दे मस्ट बी इन द सेम ग्रुप, ये नहीं ट्रू, क्योंकि दोनों +2 बना रहे हैं ना, तो कौन से ग्रुप में होंगे दोनों? +2 आयन कौन सा ग्रुप का होता है? ग्रुप 2। ठीक है, सो या तो ग्रुप 2 होगा, या फिर दे कैन आल्सो बी ट्रांजिशन मेटल्स, +2 कैन आल्सो बी ट्रांजिशन मेटल्स। So you're not sure they must be in the same group is not true. I mean, you can't say that. Transition metal भी हो सकता है, तो इसलिए वो लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। तो अगर वो मस्ट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता फिर तो सही हो जाता है। हाँ, वो कहता could be in the same group, हाँ ठीक है, they can be in the same group। अच्छा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कि क्योंकि these are all tricky questions, ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। There was one we skipped earlier which was ये वाला। अच्छा, remember to solve the question you don't have to know the full equation, you just need to know the ratio। even दो चीजों का रेशियो पता लग गया तो you'll be able to find what the answer is। so for example this question में there's a lot of stories written कि he's saying 0.144 gram of an aluminium compound X reacts। so let's say it's the first one, Al2C3। ये भी trial and error है, ठीक है। let's say it's Al2C3, 0.144 grams reacts, right, with water, it reacts with water, वो से लिखा हुआ है, to produce a gas। so it produces a gas and I have no idea what that gas is, ठीक है, absolutely no information is given। the gas burns completely in O2। हाँ जी, सर आपको Al2C3 का कैसे पता चला? नहीं वो तो मैं इसमें ट्रायल एरर करना पड़ेगा ना, क्योंकि पता ही नहीं हमें क्या ऑप्शन किया, तो हमें बार बार चेक करना पड़ेगा। पहले ये चेक करेंगे, ये भी डेटा फिटिंग का है ना, कि डेटा जो गिवन है ना वो किसके साथ मैच कर जाता है, ठीक है, क्लियर है? यस। अच्छा, फिर उसने कहा कि वो जो गैस है ना उसको बर्न किया O2 के साथ, इट फॉर्म्ड वाटर एंड इट फॉर्म्ड कार्बन डाइऑक्साइड, और खाली जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ना वो गिवन है कि 72 cm³ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है। तो अब ये बीच में जो हुआ है हमें तो कुछ पता नहीं इस बीच में क्या हुआ है, उससे कोई इन्फॉर्मेशन ही ज्यादा नहीं दी हुई, ठीक है, बस उसके एंड में कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो अगर आपका कार्बन, ऑल ऑफ दिस इज कमिंग फ्रॉम Al2C3, तो इसका क्या रेशियो होगा? Al2C3 कितने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा? मतलब ये बीच वाला पार्ट जो है ना हम टोटली इग्नोर कर सकते हैं, वी डोंट केयर, क्योंकि उसके हमें पता ही नहीं है उसका क्या है। अच्छा, तो Al2C3, हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड कैन इट प्रोड्यूस? 3 कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, क्योंकि उसके अंदर 3 कार्बन है, तो इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। इज दैट क्लियर? Yes, sir. So the thing is the ratio should be 1:3, yani whatever the moles of Al2C3, the moles of CO2 should be 3 times that।
तो अब आपने डेटा मैच करना है, इसके मोल्स निकालो, इसके मोल्स निकालो, देखो इज इट 1:3 or not. If it is, then it's the correct answer. If it's not, then this is not the correct option. Move to the next one. Try this with Al3C4. अब Al3C4 जो होगा, that would produce at the end of the day would produce 4 CO2s. वही डेटा इसके साथ मैच करो, 0.144 grams, and that one is 72 cm cube. Find out the moles. If the ratio comes out to be 1:4, that means this is the correct option. समझ आइए किस तरह करना है क्वेश्चन? ये ये क्लियर? दरमियान की सिचुएशन के बता देंगे आप, जो गैस प्लस O2। अब पता ही नहीं है हमें, उसने कुछ बताया ही नहीं है कि कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई है। बस उन्होंने यही बताया ना कि दिस गैस बर्न्स, जो आपने ये लिखा है इसके बाद गैस प्लस उसे कह के O2 उसे, हाँ, हो गया। क्योंकि रिमेम्बर दो चीजों का रेशियो है ना बेसिकली। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो तो आप सारी रेशियोज तो यूज नहीं कर रहे होते ना, इट्स जस्ट यू जस्ट पिक टू थिंग्स और उन्हीं का रेशियो यूज कर रहे होते हो ना, ठीक है? तो द थिंग इज कि सारों का तो पता ही नहीं करना। व्हाट यू जस्ट नीड टू नो इज इन्फॉर्मेशन इसकी गिवन है, और एंड में वो जो CO2 प्रोड्यूस हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो फिर उनका आपको तो सिर्फ इसका और इसका रेशियो पता करना है ना, बाकी इक्वेशन जो मर्जी है हमें क्या, ठीक है? ठीक है। तो हमें पता लग गया कि इसके फॉर्मूले से पता लग गया इसमें अगर 3 कार्बन है तो वहां पे CO2 कितने होंगे? 3 होंगे ना, क्योंकि कहीं और से तो CO2 प्रोड्यूस ही होगा ना, वाटर तो CO2 प्रोड्यूस नहीं करेगा ना, या ये ऑक्सीजन बीच में डाली है वो तो CO2 प्रोड्यूस नहीं करेगा ना, मतलब वो तो कार्बन जो होगा वो तो सारा का सारा यहाँ से आएगा। तो अगर शुरू में 3 कार्बन थे तो यहाँ पे 3 कार्बन डाइऑक्साइड 3 प्रोड्यूस होंगे, ठीक है? अगर शुरू में 4 कार्बन होंगे तो एंड में 4 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे, इट्स गोइंग टू बी 1:4। बाकी वो डेटा मैच करना है कि डेटा के साथ मैच हो जाता है, ठीक है? क्लियर है? यस सर। सर हाँ जी। तो इसका मतलब बीच में जो रिएक्शन है उसको इग्नोर कर सकते हैं? हाँ, ये हम हर दफा करते हैं अक्सर, जैसे हमने कोई भी यहाँ पे अभी क्वेश्चंस जो किए हैं ना, जैसा ये किया था, मुझे था जब हम सॉल्व कर रहे थे हमने NO2 और ये हाफ और ये 2NO2 इसका कुछ हमने कुछ किया था? कुछ भी नहीं किया था ना, इसको तो हमने बीच में डाला ही नहीं था। तो अगर ये सारा ना भी लिखा होता कोई फर्क पड़ता? नो सर। तो क्योंकि एंड में तो तुम बस इन दो को कंपेयर कर रहे थे ना, तो वो हर क्वेश्चन में आप यही कर रहे होते हो। वो जो उसके बाद वाले भी क्वेश्चंस थे उसमें इसके लिखने, मतलब ये ना भी लिखा होता इसकी जरूरत नहीं थी। खैर वो लिखना इसलिए इंपॉर्टेंट था, उससे रेशियो पता लगा था ना हमें। जब आप पूरी इक्वेशन लिख के बैलेंस करते हो ना तो 4:1, मतलब उसके, तो आपको उससे रेशियो पता लगा था ना। तो इसलिए वो पूरी बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं। लेकिन रेशियो तो आपको उसके बगैर भी पता लग जाता है। अगर मैं ये पहला वाला ना लिखूं तो मुझे बताओ कि इसका और इसका रेशियो तो तब भी पता लग जाएगा। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, राइट? मैंने यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो ये 1:2 बनेगा। तो इवन अगर इक्वेशन आपकी पार्शियल हो तो आप दो चीजों का आपस में रेशियो फिगर आउट कर सकते हो, ठीक है? क्लियर है? यस सर। तो मतलब वो एक और एग्जांपल मैं इस तरह कर देता हूँ कि लेट्स से C3H8 है, वो कह रहा है इसको बर्न कर रहे हैं और फिर उसको ना उससे वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। तो मुझे अब बाकी इक्वेशन में ना भी लिखूं, मुझे तो कितना वाटर प्रोड्यूस होगा एक मॉलिक्यूल से? सर 8। 84। 4। अच्छा फिर उधर से तो मतलब ठीक है। ठीक है, तो मुझे रेशो पता लग जाए, एक मॉलिक्यूल जो होगा ना वो 4 वाटर प्रोड्यूस करेगा। तो मतलब पूरी कंप्लीट इक्वेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर तो खाली इन दोनों की बात हो रही है तो मैं तो बस वो आधे काम से भी काम चला लूंगा, ठीक है? क्लियर है ये बात? तो यस सर। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं। कोशिश करते हैं ऑर्गेनिक स्टार्ट करें या केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है? सर हाँ जी, सर इसके बाद आप केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग कर लेते हैं, ठीक है? सर ये मोल्स के क्वेश्चंस वो टॉपिकल में होंगे? एक्सक्यूज। जो मैंने सब टॉपिक वाइज एक भेजी है वो उसी में है ना ये। सर उसके आंसर सर किधर से देखेंगे? उसके आंसर्स मेरे पास है तो सही, पता नहीं कहीं गुम हो गए। लेकिन वो ये कर लिया करो ना, ये देखो कि ये W12QP11 अच्छा है ना, ठीक है तो जी वो सर।
वो जल्दी से ना Five- 9 हाँ मतलब 9701 क्या है W12 और MS_11 और PDF लिख दिया करो, वो खुल जाएगा, उसमें 70 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है? ठीक है सर। चले ठीक है, ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज।